آج کی تقریب کے مہمان خاص محترم نیاز پوہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب معلم ہیں، صحافی ہیں اور مدیر ہیں روزنامہ کاوش کے، آپ لوگوں کی بہت ساری تالیوں میں محترم نیاز پوہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام سائیں سلیم بیگ مرزا صاحب، سائیں ناصر الدین شیخ صاحب، صابر فیاض صاحب، گل کندر صاحب، عشرت علی خان صاحب، دوسرے مہربان دوستو، السلام علیکم۔ میرے لیے بات کرنا اس لیے مشکل ہے کہ ایک تو بہت بڑی شخصیات اسٹیج پہ براجمان ہیں اور بہت اچھے سے پڑھے لکھے لوگ وہ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اور دوسرا بات کرنے کی مشکل اس لیے مجھے پیش آ رہی ہے کہ اردو میں اچھی بول نہیں سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں نے جب سندھی بھی نہیں پڑھی تھی اس سے پہلے میں نے اردو پڑھنے شروع کی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں اخبار جہاں آتا تھا اور آغاز نیوز پیپر ڈیلی شام کا وہ آتا تھا، اور اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ میرے دادا وہ جنتریوں پہ یقین رکھتے تھے، تو ہمارے گھر میں وہ جنتریاں بھی آتی تھیں جو میں دیکھتا تھا کہ میرا دادا اپنے پاس رکھتا تھا اور پڑھتا تھا اور اس کے علم فلکیات پہ بات کرتے تھے۔ تو اردو میں اخبار آغاز اخبار میں ایک قسطوار کہانیاں چھپتی تھی، تو وہ میری اماں مجھے پڑھ کے سناتی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے جب ہوش سنبھالا اور پڑھنا شروع کیا تو میں نے اردو بہت پڑھا۔ اردو کا اگر مجھ سے ذکر کیا جائے تو شاید کوئی بھی اردو کا اچھا افسانہ نگار اور اچھا شاعر میرے پڑھنے سے دور نہیں گیا، اور اتفاق ہے کہ بات کرنے کی کبھی موقع نہیں ملا۔ تو آج اگر میں کہیں بھی غلطی کروں تو جو اوپر اساتذہ کرام ہمارے بیٹھے ہوئے معزز وہ بھی مجھے معاف کریں، اور نیچے ہمارے سامنے عشرت علی خان صاحب جیسے بہت بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی مجھے اس سے معافی دیں اگر کوئی بات ہو جائے۔ گلکندر صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، اور ہماری دوستی کی بہت زیادہ اسباب ہیں، ہم ایک دوسرے سے ایک قریب کیوں ہیں۔ اگر ہمارے پروفیشن کو دیکھا جائے تو ہم ایک ہی پروفیشن میں رہے ہیں بہت زیادہ، ہم ٹیچر رہے، استاد رہے، کالج میں ہم ساتھ رہے، سچل آرٹس کالج جو سپلا کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے یا نہیں ہے یہ کوسچن میں سامنے چھوڑ دیتا ہوں انور کاندڑوں کے لیے۔ تو وہاں پہ ہم گلکندر صاحب اور زیب سندھی صاحب بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں ہم نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنایا ہوا تھا جہاں بیٹھ کر ہم باتیں کرتے تھے، باتیں بھی کرتے ہیں اور دنیا کی جو بھی ساری گلائیں ہیں، گلام کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ بھی ہم صاحب مل کے کہتے تھے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گل صاحب تو جلدی کالج سے چلے گئے اور زیب صاحب ریٹائرڈ ہو گئے، اور میں ابھی جا کے ریٹائر ہوا ہوں۔ تو ہماری محبت کا اور ساتھ رہنے کا ایک سبب تو یہ رہا کہ ہم نے سچل کالج میں ایک ساتھ بہت وقت گزارا۔ پھر ریڈیو پاکستان سے میری زیب کی اور گلکندر کا ایسے تعلق ہے، عشرت علی خان صاحب کی طرح کیا نہیں ہے کہ وہ 50 سال سے زیادہ ہے، مگر میرا بھی اگر تعلق ہے تو وہ بھی 74-75 سے ہے۔ جب میں بچہ تھا اور بچوں کے پروگرام وارنگل کی باری میں جایا کرتا تھا تو وہاں سے میں نے ریڈیو کا شروعات کی ہے۔ پھر زیب سندھی صاحب ریڈیو کے پروڈیوسر بنے ہیں، اور گلکندر صاحب نے ریڈیو میں بہت ایز اے کمپیئر اور نیوز کاسٹر گزارا ہے، اور پھر شاعری لکھنا پڑھنا، تو سارے ایسے اسباب بنے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اور زیب گل صاحب ایک ساتھ بہت زیادہ رہے ہیں۔ میں کچھ چیزیں بات میں بھی بات کروں گا، بات میں تسلسل نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے، اس لیے میں 2 پیجز لکھ کے لایا ہوں کہ وہ اگر کوئی تسلسل میرے بات میں نہیں ہے تو میں اس لکھت میں لیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گل ہیں، اور گل کی معنی پھول، اور اگر یہ پھول ہیں تو ہم سب ان کے بھونرے ہیں،
अगर फिर देखा जाए तो भंवरा एक नेगेटिव टर्म लगता है तो बड़ा खूबसूरत रंग बरंगी। एक टाली पे बैठता है फिर उड़ता हुआ दूसरी पे जा बैठता है, मगर ये फूलों का रस चूस जाता है। अगर आज हम जिस फूल पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये फूल खुद भी एक बड़ा जालिम फूल है। इसने तो हमें खुद अपनी मोहब्बत और अच्छाइयों से घायल करके अपनी जाल में फंसा रखा है। हम इसका रस क्या चूस सकते हैं? इसने तो खुद हमारा सारा रस चूस लिया है। गुल और हम अलग अलग बाप के बेटे हैं। उनकी ज़ात कुंधर और मेरी ज़ात पंवर है। ये उम्र में मुझसे कुछ छोटे और काम और अकुल में और सलीके में मुझसे बहुत बड़े हैं। मैंने ज़िंदगी में हमेशा कामों को उलझाया है और गुल ने हमेशा मुझे और मेरे काम को सुलझाया है। मैंने कहा कि गुल और मैं अलग अलग बाप के बेटे हैं, मगर सच तो ये है कि हम ये बात सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं मगर दिल से अमल से हम सच के लिए हक के लिए हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। मगर कई ऐसे मौके भी आए जहां हमने किसी एक के गलत काम के बावजूद दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हम इस गलत काम को लोगों के सामने सही साबित करने के लिए एक हो जाते थे, लोगों से लड़ जाते थे, मगर फिर अकेले होने के पहले ही लम्हे हम अपने आप को भी नहीं बख्शते थे। हमने ज़िंदगी में दूसरों के गले में कभी हाथ नहीं डाला, मगर अपना गला भी कभी किसी के हाथ में आने नहीं दिया। हमारे रगों में भले एक ही रंग का खून हो, मगर हम दोनों ने सांसें भी एक ही माहौल में ली है। हमने अपना बचपन वाटर सप्लाई के नलकों से आए हुए या अंडरग्राउंड टैंकियों में स्टोर किए जाने वाले पीने वाले पानी के बजाय कैनालों और वाटर कोर्सों से दोनों हाथ से मिलाकर या वहाँ के मटकों में जमा किए हुए पानी से गुजारी है ज़िंदगी। हमने केमिकल मिला हुआ दूध पीने के बजाय भैंसों, बकरियों और गाय का दूध खुद निकाल कर पिया है। हमने इस ज़मीन के फसल गेहूँ, चावल, सब्जियाँ खाकर जवान हुए हैं। हमने जो खुद उगाए हैं। यही सबब है कि हम सोचते भी एक तरह हैं, बात भी एक तरह करते हैं और लिखते भी एक तरह हैं। और ये और बात है कि हमें कोई अच्छा लिखारी समझता है या नहीं, या वे उसकी हमें परवाह नहीं, क्योंकि हम किसी को खुश करने के लिए नहीं मगर इस धरती, इनके लोगों, उनकी खुशियों, उनके दुखों और उनके एहसासों पे लिखते हैं और हम उनमें खो जाते हैं। मैंने गुल की ज़िंदगी में वो सब कुछ देखा है जो एक मिडिल क्लास, जिम्मेवार, हसास और दर्द दिल रखने वाले की ज़िंदगी में होता है। मैंने उसे कभी आंसू छुपा के और कभी आंसू बहाते हुए भी रोते देखा है। इसने ज़िंदगी में हमेशा बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं, मगर इसके दिल के अकेलापन आज भी हज़ारों लोगों में बैठे हुए उसे अकेला कर देता है। उसने अपने आप को बड़ा मसरूफ़ रखा है। वो खुद लिखता भी है, पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है। वो रेडियो का एक ऐसा आवाज़ भी है जिसके बोलने की और बात करने के भी पैसे मिलते हैं। वो पैसे लेता भी है और सुनने वालों के दिलों पर राज भी करता है। उसने अपने इल्म को कभी महदूद नहीं रखा। वो जब खुद ज़्यादा लिखता था और छापता था तो वो एक ऐसे रिसाले का एडिटर था जो नौजवानों का रिसाला था। उसने 12 साल तक इस रिसाले के 100 से ज़ायद पर्चे निकाले तो थे ही, मगर 100 से ज़ायद नौजवानों को लिखारी भी बना दिया था। इन लिखारियों में फिर बहुत से वज़ीर भी बने, ब्यूरोक्रेट भी बने और हमारे जैसे टीचर भी बन गए। इस मावा रिसाले का नाम था अदब और इस नाम ने गुल की ज़िंदगी पे भारी असर किया। गुल को इस बाअदब, बानसीब और बेनसीब के फ़लसफ़े ने मुतासिर किया और वो बाअदब, बानसीब बना जिसकी तस्दीक
سامنے والے دوست ضرور تالیاں بجا کر کریں گے۔ میں نے کچھ سال پہلے گل کی زندگی پر ایک خاکہ لکھا تھا جس کو ہم انگریزی میں اسکیچ کہتے ہیں۔ اس خاکے کی وجہ سے گل کی زندگی کے بڑے راز لوگوں کے سامنے آشکار ہوئے۔ گل ان رازوں کو راز نہ رکھنے پر مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا، البتہ بہت سے لوگوں نے گل کو میری اس تحریر کے ظاہری یا باطنی معنی سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ٹھیک ہے، اب اتنے ہی لوگ ہیں کہ میرے آواز سے پہنچ جائیں گے۔ باطنی تحریر کے ظاہری اور باطنی معنی سمجھانے میں میرا خیال آ جائے گی، کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دل کے بھی بڑے ثابت ہوئے ہیں۔ میں اس کتاب میں سے جو میں نے اسکیچ لکھا تھا گل کے لیے، کیونکہ وہ سندھی میں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیے تو اس کے ایک آدھ پیراگراف پڑھتا ہوں کہ وہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ گل جی زندگی میں ہر شے ترتیب میں ہوندی ہے۔ گل جی زندگی میں ہر شے ترتیب میں ہوندی ہے۔ صبح جو اٹھن کھان وٹھی رات جو سمن تائیں، بھلے संदसि डायरीअ ते लिखियल को शेड्यूल न बि हुजे, पर सॼो ॾींहुं गुज़ारींदो ज़हन में जुड़ियल उन तरतीब सां। वेहणु, उथणु, वेझणु, चांहि पीअणु, पंहिंजी मर्ज़ीअ जा कपिड़ा पाइणु, घरां निकिरणु, कॉलेज वञणु, गाॾीअ जी स्पीड कहिड़ी रखणी आहे ऐं कहिड़ा कहिड़ा मामला करणा आहिनि, बूट पाइणा आहिनि या सैंडल, इहो सभु कुझु अॻुवाट तइ थियल हूंदो आहे। हू कॉलेज में अॼु चांहि पीअंदो या काफ़ी रिवॉल्विंग चेयर ते वेंदो या आम कुर्सीअ ते, इहो बि गुल अॻुवाट तइ करे चुको हूंदो आहे। अवां शायदि एतबार न कंदो त हू रोज़ानो खां सवाइ पंहिंजा हफ़्तेवार, माहवार ऐं सालियाना प्रोग्राम बि अॻुवाट तइ करे वठंदो आहे। मिसाल तौरु इहो तइ आहे त हू आचर ते पंहिंजे वारनि खे कलर कंदो। मिसाल तौरु इहो तइ आहे त हू आचर ते पंहिंजे वारनि खे कलर कंदो, सूमर ते पंहिंजे हथनि ऐं पेरनि जा नूंहं लाहींदो, नाखून नेल्स जो आहे उहो उतारेगा। जो आचर ते पंहिंजे वारनि खे कलर, सूमर ते पंहिंजे पेरनि ऐं हथनि जा नूंहं लाहींदो, अंगारे ते पंहिंजे मथे जे वारनि जी संवारत कराईंदो ऐं अरबा ते कुझु ॿियो। ख़मीस ते कुझु नवां कपिड़ा ख़रीद कंदो या सिबराईंदो। जुमे ते ख़ैर ख़ैरात ऐं निमाज़ जे सिलसिले में मस्जिद जे हवाले हूंदो। छंछर ते ॻोठ वेंदो या दोस्तनि वक़्तु गुज़ारींदो। आचर ते भाॼी ऐं सीधो सामान वठंदो ऐं सूमर खां वठी संदसि तरतीब साॻी शुरू, यानी वारनि खे कलर ऐं पोइ साॻी जदवल ॿीहर पढ़ी सघे थी। गुलबुधर पंहिंजी तबियत पठांदड़ ज़िद्दी बि आहे। कुझु फ़ैसिला हुन पंहिंजे नंढपण में ई करे वरिता हुआ, जेके संदसि दिमाग़ खे एसी ताईं घुमंदा रहिया जेसीं ताईं उन्हनि खे पंहिंजी पाया तकमील ताईं न पहुचायो। मिसाल तौरु जॾहिं साणसि मुंहिंजी पहिरीं मुलाक़ात थी त उन खां अॻु 8-10 साल अॻु हू पहिरीं शादी करे चुको हो। खेसि 4 ॿारनि, सुमेरा गुल, मोहम्मद सुमेर गुल, सायरा गुल ऐं सतारा गुल जो औलाद हो। ऐं उन खां पोइ भला से खेसि बि न्याणी सवेरा गुल अता फरमाई। इहे सभई ॿार पंहिंजे बाबा सां अथा प्यार कनि था। गुलकुंदर पंहिंजी ॿी शादीअ जो फ़ैसिलो पंहिंजी पहिरीं शादी खां अॻे करे वरितो। सो हिन जी ॿी शादीअ जो विर्द उन वक़्त ताईं ख़तमु न थियो जेसीं ताईं हिन इहा शादी करे पंहिंजी जान न छॾाई, अलाए जे फासाई। बहरहाल पहिरीं शादी खां पोइ वारा 5-7 साल ॿी शादीअ लाइ के वॾी जिदोजहद जा आसार नथा मिलनि। बाक़ी 1990 वारे ॾहाके में कहाणी लिखण जी शुरूआति कई त खेसि पसंदि करण वारियूं छोकिरियुनि जो सिलसिलो शुरू थियो। हिकु छोकिरी ख़तनि ऐं फ़ोन जे ज़रिए वॾो इश्क कयसि। उनखे सुठी मोट बि ॾिनई, पर जॾहिं उन सां रूबरू मुलाक़ात थी त उन खां जान छॾाइण में लॻी वियो ऐं नेठि उन खां आजिबो हासिलु कयईं। असां दोस्तनि खे उनजो को ख़ातिर ख़्याल जवाबु न ॾेई सघियो आहे त जेकॾहिं ॿी शादी करणी हुई त उन पढ़ियल लिखियल छोकिरीअ सां शादी छो न कयईं। गुलकुंदर अभी एक और बात, असांजो प्यारो दोस्त गुलकुंदर 90 वारे ॾहाके जे विच खां 2000 वारे ॾहाके जे दरमियान वारी मुदत में हिकु वॾे इश्क में मुब्तला रहियो। उन दौरान हू सम्झंदो हो त हिन वक़्तु दुनिया में हुन खां वॾो को आशिक़ आहे ई कोन।
संदसि उन इश्क जी पुॼाणे कॾहिं थी त हमरा हथनि मां पियो वञे। संदसि गैर हाज़िरी ऐं तबियत जी नासाज़ी जो ॿुधी ज़ेब सिंधी परवेज़ इक़बाल ऐं संदसि घर पहुतासीं त बरोच की तबियत रखंदड़ असांजो ही समान ज़ात वारो दोस्त असां सां मिली रोई पियो। मूंखे दोस्तीअ जे अलाए केतिरनि सालनि ऐं पहिरें आख़िरी भेरो रहंदे ॾिठो। ख़ैर असां हिन खे आख ॾेई पंहिंजे घर ॾांहुं रवाना थियासीं। गुलकुंदर इश्क में नाकामी जो थक अञा पुॼाणी ते न पहुची सघियो आहे। हू नूर बानो माई भागी ऐं ज़िंदत सिद्दीकी जे गाननि ते गुफ्तगू शुरू करे छॾींदो। अब ये है कि उसकी ज़िंदगी में माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा ज़ाती दोस्त है, मैं कुछ चीज़ें छुपा भी नहीं सकता। और ये दूसरी बात है कि गुलकुंदर ने मुझे अपनी ज़िंदगी के सारे अख्तियारात दिए हुए हैं और मैंने भी सारे अख्तियारात बगैर लिखे उनको दिए हुए। जिस तरह से वो टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक्स पे लिखा होता है कि इन किताब जी छपाई जा सब हक़ वास्ता सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास महफूज है, तो इस तरह गुलकुंदर की ज़िंदगी के सारे मामला मेरे परवेज़ इकबाल और ज़ेब सिद्दीकी के साथ है। हम दोनों ने बड़ी कोशिश की कि वो दूसरी शादी न करे। हमने बड़ी इस सिलसिले में हमसे जो कुछ हो सकता था, जब हमें पता पड़ता कि ये मामला कुछ करने वाला है तो हम आगे जाके छुप छुप से उस लड़की को इसके ऐसे मामला बताते कि वो फिर बात नहीं बनती। फिर यही सबब था कि इसने जो हमें सलाहकारी के लिए मुकर्रर किया हुआ था कि हमें सलाह दो कि हम क्या करें, तो उसने वो थी वैसे एजाज़ी सलाहकारी, मगर उसने हमें उस एजाज़ी सलाहकारी से हटा दिया बगैर नोटिफिकेशन के। और फिर हमें तब जाके पता पड़ा कि जब उसने दूसरी शादी करके बेगम साहब को एक अलग से घर दिलवा दिया और फिर एक दिन हमें लेके गया, चलो कि मैंने शादी के लिए और मेरी दूसरी बेगम साहबा से मुलाकात करी। गुल साहब की ज़िंदगी के और से बहुत से मामला थे। हमने सफ़र साथ किया है, हम जॉब हमने साथ किया है, हमने मुख्तलिफ लोगों से झगड़े जो किए, झगड़ा ख़त्म किया है, तब भी हमने साथ किए। मुझे खुशी इस बात की आज हो रही है कि गुल साहब पे जिन लोगों ने बात की तो मुझे लगा कि बहुत से दोस्त बाकायदे पढ़कर तफसीली तरह और फिर वो बात करें। इशरत अली खान बातों को फिर मिलाकर बात कर रहा हूँ, मगर उन्होंने जिस किताब की आज रुनमाई है उसको तफसील के साथ पढ़ा और उसकी गहराई के साथ पढ़ा।